اور اگر اب بھی نہیں سمجھے تو تیار ہو جاؤ، تمہاری نسلیں، تمہاری جو اولادیں ہیں وہ اتنا برا وقت دیکھیں گی جس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ وہ اوپر والا تو کرتا ہے لاکھوں کروڑ، لیکن نیچے والا جو چھوٹا ہے وہ بھی ہزاروں کروڑ روپے خرچ کرتا ہے اپنے چہرے چپکانے کو۔ چونکہ وہ جو یہاں شخص بیٹھا تھا جو اس وقت اوکھلا کا ایم ایل اے بھی ہے، وہ ایک پارٹی کا امیدوار، ایک پارٹی کا ایم ایل اے ہے، وہ ہمارا قائد نہیں ہے، اس لیے اس کو بالکل روک دیا ہے۔ وہیں سے جنم لیتی ہے سچر کمیٹی۔ جب آپ کسی کو ایک گلاس پانی دیتے ہیں تو آپ اسے دیتے ہیں زندگی کے کچھ گھونٹ، تو کیوں نہ ہو وہ ہر گھونٹ ہیلدی اور 100% پیور۔ گھر لائیے یوروفوبس واٹر پیوریفائرز۔ یوروفوبس پیور واٹر سولوشن۔ جھوٹ سے دور، خبروں سے بھرپور۔ آج کا جو ٹاپک ہے کہ ہندوستان میں ذات پات پر مبنی سیاسی نظام میں کمزور طبقات کا استحصال اور اس کا حل۔ میرے بھائی، یہ ایک ایسی سچائی اور حقیقت ہے جو ہزاروں سال سے اس ملک میں ذات اور پات کا سسٹم چلتا چلا آیا ہے۔ جس نے نہیں پڑھا اور جب نہیں پڑھا وہ اس کی غلطی تھی۔ دیوار پہ تو صاف صاف لکھا تھا کہ یہ ملک کا جو مزاج ہے یہ ذات اور برادریوں میں بٹا ہوا ہے، اسی لیے ایک طبقہ دوسرے طبقے پر ظلم کر لیتا ہے۔ اسی وجہ سے ہزاروں سال ایک بڑا طبقہ ایک چھوٹے طبقے کا غلام رہا۔ اس کے بعد اس ملک میں اسلام کا انٹری ہوتی ہے۔ جب اسلام یہاں آتا ہے تو وہ مساوات کا درس دیتا ہے، وہ بتاتا ہے کہ انسان کے کیسے برابر ہے۔ لیکن چونکہ یہاں کی جو ماحول ہے اس میں اس قدر ذاتیات، اتنی ذات پات جکڑی ہوئی تھی کہ اس کا اثر بھی اتنا نہیں ہو پاتا، اور جتنا بھی ہو پاتا ہے تو وہ اتنا ہو پاتا ہے جس تعداد میں ہم لوگ یہاں موجود ہیں۔ یعنی ہم وہی لوگ ہیں جو مول نواسی ہیں ہندوستان کے، اور ملک بٹوارا ہونے کے بعد دو قومی نظریے جو جس پہ بحث چل رہی تھی وہ وہاں ختم ہو جاتی ہے، اور ایک طبقے کو اس بٹوارے کے لیے ذمہ دار بنا کر اس کو ایک طرح سے احساس کمتری میں مبتلا کر دیا جاتا ہے، اور ایک بڑا طبقہ اپنے آپ کو سیاسی پوری کشتی کا مالک سمجھتے ہوئے اس ملک کو چلاتا ہے۔ لیکن اس کے چلانے کے بعد بھی جو استحصال ہوتا ہے وہ رکتا نہیں۔ یعنی جو نظام جو ہزاروں سال سے چلا آتا ہے، جیسے میرے ساتھی راجیو ریاض صاحب نے بتایا کہ جس طرح سے جو پہلے جو ظلم تھا اس کا صرف شکل بدل گئی لیکن ظلم باقی رہا، اور ہمارے ساتھ تو ایک اسپیشل ظلم ہو گیا ہے۔ جیسے ابھی عادل حسن آزاد نے کہا کہ 9 اگست کو پریزیڈنشل آرڈر کے تھرو دو مذاہب کو منع کر دیا گیا کہ یعنی جو اسلام میں ہوگا یا کرسچن ہوگا، اور اس کو اس مراد سے بھی دور کر دیا گیا جو کہ بابا صاحب نے باقاعدہ ہر ہندوستانی کے لیے تجویز کی۔ بات یہی نہیں رکتی، ہمارے جو کابرین تھے، ہمارے جو بزرگان دین تھے، ہمارے جو لیڈران تھے، ان کو یہ بات دیوار پہ لکھی ہوئی سمجھ میں ہی نہیں آئی، اور وہ اس بات کو تسلیم ہی نہیں کرنے کو تیار تھے کہ آخر یہ جو بیماری اور غیر طبقوں میں ہے، یعنی غیر مسلموں میں ہے، وہ اتنی ہی شدت سے اتنی ہی تعداد میں مسلمانوں میں بھی، اور یہ ہپوکریسی مسلمانوں کے اکابرین میں رہی۔ اگر یہ ہپوکریسی نہ ہوتی اور اس سچائی کو اگر وہ سمجھ لیتے تو آج بھیم راؤ امبیڈکر صاحب کی جو عرضی تھی، جو بھیم راؤ امبیڈکر صاحب کی جو خواہش تھی، میں پیدا تو ہوا ہوں ہندو مذہب میں لیکن میں مرنا نہیں چاہتا ہندوؤں کے، تو اس کے بہت زیادہ امکانات تھے کہ وہ مسلم ہوتے اور آج ہم اکثریت میں ہوتے۔ ایک ایسا واقعہ سنانا چاہتا ہوں جس سے آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی۔ میرے توجہ ان نوجوانوں کی ہے، ان نوجوانوں کی طرف ہے جو پروفیشنل ہے، کیونکہ ایک پروفیشنل ایک آرٹیکل لکھتا ہے، وہ آرٹیکل انڈین ایکسپریس میں چھپتا ہے، اور وہ آرٹیکل کو منموہن سنگھ پڑھ لیتے ہیں، اور وہ آرٹیکل لکھتے ہیں ابو صالح شریف صاحب، اور ابو صالح شریف صاحب چونکہ ایک اکنومسٹ تھے، اور ابو صالح شریف صاحب اپنی ایک جو بھی سمجھ تھی اس سمجھ کے اعتبار سے ہندوستان کی کاسٹ سسٹم، ہندوستان کا جو معاشی نظام ہے، ہندوستان کا جو سوشل اسٹیٹس ہے، ہندوستان کا جو پولیٹیکل اسپیکٹرم ہے، اس پہ وہ آرٹیکل لکھتے ہیں، اور وہ آرٹیکل اتنا جامع ہوتا ہے کہ اسے منموہن سنگھ پڑھ لیتے ہیں، اور منموہن سنگھ پڑھ کے اتنے متاثر ہوتے ہیں کہ ان کو ٹیلی فون کرتے ہیں۔ منموہن سنگھ اس وقت پرائم منسٹر ہوتے ہیں، اور منموہن سنگھ ایز اے پرائم منسٹر ان کے پاس فون پہنچتا ہے، جبکہ وہ ابو صالح شریف صاحب صرف NACR میں ایک پروفیسر کی حیثیت سے تھے، ایک اکنومسٹ کی حیثیت سے تھے، اور ان کو طلب کر لیا جاتا اور ان سے کہا جاتا ہے بھی آپ نے تو بہترین بات لکھی ہے،
आपने माइनॉरिटी के हवाले से जो लिखा है उसने मेरी आंखें खोल दी। तो वो उनकी जब गुफ्तगू होती है और वहीं से जन्म लेती है सच्चर कमेटी। सारे मुस्लिम नुमाइंदे हमेशा हर पार्टी से जीतते रहे, एमएलए भी बनते रहे, एमपी भी बनते रहे, लेकिन किसी की इस तरफ नजर नहीं गई कि आखिर हिंदुस्तान में जब सब चीजों के आंकड़े हैं तो मुसलमानों के आंकड़े क्यों नहीं। तो चूंकि मनमोहन सिंह खुद अपने आप में एक माइनॉरिटी को बिलोंग करते थे, एक बेहतरीन इंसान है और मैं उनको सलूट करता हूं कि उन्होंने उनको मौका दिया और उनसे कहा कि नहीं, मैं अपने ऑर्डर से एक कमेटी बनाता हूं। और पार्लियामेंट से कमेटी नहीं बनी है सच्चर कमेटी, उन्होंने अपने ऑर्डर से वो कमेटी बनाई और वो कमेटी बनाने के बाद फिर उसमें तलाश की जाती है भी किस किस को रखे। तो उसमें जस्टिस सच्चर आते हैं इनका नाम, चूंकि उनको पहले से उनको ऊपर एतमाद था कि ये हमेशा इंसाफ और फैसला करेंगे, और उस पर जब काम शुरू हो जाता है, अब जब काम शुरू होता है तो काम के शुरू होने में आपका ये छोटा सा खादिम भी आता है उसमें, और उनके एक साथी होते हैं आईएएस सैयद जमीर पाशा साहब। वो बेंगलोर से यहाँ तशरीफ लाते हैं और मुझसे कहते हैं कि यार ये काम बहुत बड़ा है, हमें सारे डाटा इकट्ठे करने हैं, पूरे हिंदुस्तान से इकट्ठे करने हैं, ताकि हम चाहते हैं कि कम से कम एक कोई डॉक्यूमेंटेड कोई चीज ऐसी आ जाए जो मुसलमानों की हैसियत तो बताए, वो ये तो बताए कि आखिर मुसलमानों का हाल क्या है। खैर उस पर काम शुरू होता है और मेरे जैसे और बहुत सारे खादिम लग जाते हैं, लेकिन वो इस बात से नावाकिफ थे। लिख तो उन्होंने दिया, लेकिन वो इस बात से नावाकिफ थे कि आखिर इसकी असल वजह क्या है, मुसलमान इतना बैकवर्ड क्यों है। तो जब मैं उनसे ये कहता हूं कि देखिए इसकी असल वजह यह है कि मुसलमानों में भी वही तमाम बीमारियां हैं जो गैर मुस्लिम्स में है, यानी जिसको आप नजरअंदाज कर रहे हो आपके साउथ में उन पे वो इतनी नुमाया नहीं है, लेकिन नॉर्थ में वो खूब नुमाया है। लोगों में जात के एतबार से मुसलमानों में भी ऊंच नीच है, मुसलमानों में भी रिसोर्सेज का बंटवारा प्रॉपर नहीं है, मुसलमानों के भी जो इंस्टीट्यूशन है वो प्रॉपर उनकी जातों के एतबार से उनको नहीं दिए जाते। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको मैं जानता हूं जो बहुत ज़हीन है, सलाहियतमंद है, लेकिन सिर्फ छोटी जात के इसलिए बड़ी जात वाला उनको मौका नहीं देता। ऐसा मैंने बचपन से फील किया है। और मैं जिस कस्बे से आया हूं वो खुद मुसलमानों का एक 80% कस्बा है, और इस तरह के यूपी और बिहार में सैकड़ों कस्बे हैं जहां पे 70 से 80% मुसलमान रहते हैं, लेकिन वहां पे वही सारी बुराइयां हैं जो और गैरों में है। जब वो ये बात सुनते हैं उसके बाद उनको एक और जाविया मिलता है, वो पटना चले जाते हैं, पटना में कॉन्फ्रेंस करते हैं और वो मुझसे कहते हैं यार तुम जो कह रहे थे वहां तो ये कोई चीज नजर नहीं आई, वहां तो सबने कहा कि हमारी कोई जात नहीं है, हम तो सब मुसलमान हैं, हम तो कलमा वो है और हम तो मस्जिद में एक साथ खड़े हो जाते हैं। मैंने कहा नहीं, वो गलत कह रहे हैं। बोले साहब उस कॉन्फ्रेंस में तो एक भी नहीं बोला। मैंने कहा बोलेगा कैसे, उस कॉन्फ्रेंस में ही नहीं बुलाया जाता उस छोटे आदमी को जो जिसके बोलने की हिम्मत ही नहीं है, अगर एक आध आ भी गया कोई गलती से तो वो बोल नहीं पाता। तो जब मैंने ये बात उनसे कही तो उनके जो चक्षु थे वो खुल गए। उन्होंने कहा अच्छा ये भी बात है। मैंने कहा ये असल बात है, इसको समझिए और इसको आप पॉइंट आउट करिए। तो पहली बार हिंदुस्तान में मुसलमानों के ताल्लुक से जो डॉक्यूमेंट आया वो सच्चर कमेटी आई, और सच्चर कमेटी ने बाकायदा अपने रिकमेंडेशन में ये बताया कि न सिर्फ ये तालीमी एतबार से बैकवर्ड है, न सिर्फ ये सोचने एतबार से बैकवर्ड है, बल्कि इनमें भी जात सिस्टम वैसे ही है जैसे कि हिंदुओं। तो पहला डॉक्यूमेंट आया दोस्तों उस प्रोफेशनल की वजह से। इस भारत सरकार में ना वो एमएलए था, ना वो एमपी था, ना किसी पार्टी से था, लेकिन वो प्रोफेशनल था। तो दोस्तों मुझे आपको मैसेज ये देना है कि आप लोग प्रोफेशनल हो, आप अपनी ताकत को कम मत आंको, आप लिखो, बोलो, जहां भी मौका मिले आपको, सोशल प्लेटफॉर्म मिले, पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म मिले, कोई अपना प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म मिले, वहां पर अपनी सच्चाई को रखो। दुनिया देख रही है, आजकल दुनिया इतनी वेल कनेक्टेड है कि जो भी बात जिस कोने में भी कही जाती है बहुत जल्दी पहुंच जाती है। अगर वो असर रखती है तो बहुत जल्दी असर पहुंच जाता है। दूसरी एक और बात मैं आपको आपकी ताकत के हवाले से बता दूं। उस दिन मैं अपूर्वानंद को सुन रहा था, अपूर्वानंद ने कहा और सत्यहिंदी.com पे उनका मजाक करा था, उन्होंने कहा कि देखिए ये मुस्लिम नौजवानों की ताकत है कि इतने बुरे वक्त में भी वो अपने मसाइल को उठा रहे हैं और लगातार उठा रहे हैं। और वो जो हरियाणा का उन्होंने वाकया जिक्र किया, उन्होंने कहा कि हरियाणा में जो जिस लड़के ने यहाँ गोली चलाई थी जामिया में और वो लड़के जमानत पे छूट गया था, उसने फिर दोबारा से बदतमीजी जो हरियाणा में जाके की, वो उन नौजवान मुस्लिम की कोशिश थी कि उसको फिर अरेस्ट किया गया और फिर उसको उसकी बदतमीजियों से या जो जहर फैला रहा था उससे वो रोका गया। तो ये मैंने दो वाक़े सुनाए आपके प्रोफेशनल की, यही वो स्टेज है। मेरे ख्याल से आधे लोग इस बात के गवाह हैं, यहाँ जितने लोग तशरीफ फरमा है, माई मीडिया की, इसमें हमारे वतन समाचार जो मोहम्मद अहमद साहब बैठे हुए, हमारे वो प्रेसिडेंट नजमी खान साहब बैठे हुए, और हमारे ये जो अभी गुफ्तगू फरमा रहे थे टाइम्स के वो शम्स तबरेज़ साहब। आप बताइए मैंने इसी अंदाज में अरविंद केजरीवाल को यहाँ बैठ के नहीं कहा था कि मुसलमानों की हालत बहुत बदतर है
और उनको 250 स्कूल दीजिए उसी तरफ पर जिस तरफ पर मजलिस ने तेलंगाना हुकूमत पर दबाव डाल के वहां के मुसलमानों को दिलवाया। क्या मनीष सिसोदिया से इसी सीट पर बैठ कर नहीं कहा था मैंने? लेकिन यहाँ फर्क समझिए, मैंने कहा था एज एक्टिविस्ट कहा था, और उन्होंने सुना था एज ए लीडर सुना था, और उनका एक नुमाइंदा भी है मौजूद था जो वक्फ बोर्ड का चेयरमैन आज भी है, और उसको उन्होंने कहा था कि तुम्हें ये काम करना है, लेकिन उसने काम करना शुरू भी किया और वो काम करके उन्होंने वोट भी बटोर लिया, और उस वोट बटोरने के बाद उस शख्स ने उस काम को बीच में भी रोक दिया था। पता है वो क्यों रोक दिया था? क्योंकि वो जो यहाँ शख्स बैठा था जो इस वक्त ओखला का एमएलए भी है, वो एक पार्टी का उम्मीदवार, एक पार्टी का एमएलए है, वो हमारा कायद नहीं है, इसलिए उसको बिल्कुल रोक दिया। उसकी कमजोरी का इस बात से भी एहसास कर सकते हैं कि आज हमारे जंतर मंतर पे हमारे खिलाफ खुलेआम नारे लगाए जा रहे हैं। क्या कोई आवाज अरविंद केजरीवाल साहब या उनकी विधानसभा में सुनी? आज वो हज हाउस जो 2008 में शीला दीक्षित ने संग बुनियाद रखी और 2013 तक वो मुख्यमंत्री रही, और हर साल उनका बजट हर साल जाता रहा, लेकिन वो हज हाउस बनना नसीब नहीं हुआ। उस वक्त हो सकता था उसकी कीमत 10 करोड़ या 15 करोड़ होती। उसके बाद 2013 में अरविंद केजरीवाल आ जाते हैं और वो चीफ मिनिस्टर बन जाते हैं। उसके बाद भी वो हर साल कहते हैं कि मैं एक भव्य हज हाउस दूंगा आपको। मनीष सिसोदिया बाकायदा उसकी पिक्चर शाये करते हैं कि देखिए कितना खूबसूरत हज हाउस होगा, लेकिन 2013 के बाद से भी वो हर साल बजट में पैसा तो आता है, लेकिन वो हज हाउस बनना नसीब नहीं होता। और इनके हरबे को तो कई इंतहा तो देखिए ना, उन्होंने आज तक 13 साल में दोनों पार्टियों ने हज हाउस बनाया, जबकि हज हाउस हज एक्ट के अंदर एक सरकारी दफ्तर है जो 20 से 25 हजार हाजी दिल्ली से दूसरे मुल्क जाते हैं, यानी सऊदी अरब जाते हैं, उनके ट्रांजिशन में जो उनकी ट्रेनिंग, उनका वैक्सीनेशन या उनका डॉक्यूमेंटेशन में जो टाइम लगता है, वो हज हाउस उसके लिए बनना था। और द्वारका में इसलिए प्रपोज किया था कि वो एयरपोर्ट के बराबर है, और आखिर टैक्स पे मुसलमान भी उतना ही करता है जितना और गैर मुस्लिम करते हैं, तो उसका उतना ही हक है सरकार पे कि उसके उमूर को सरकारी उसको सहूलत दी जाए। लेकिन इन दोनों सरकारों ने, कांग्रेस ने भी और आम आदमी पार्टी ने भी उन मामले से हज हाउस को, जिसकी आज भी 94 करोड़ कीमत है, हजारों करोड़ जो शख्स अपने सिर्फ विज्ञापन पे अपने चेहरे को चमकाने में खर्च करता हो, वो ऊपर वाला तो करता है लाखों करोड़, लेकिन नीचे वाला जो छोटा है वो भी हजारों करोड़ रुपए खर्च करता है अपने चेहरे चमकाने को। लेकिन जिस कौम ने उसको 82% वोट दे के जिताया हो, मुख्यमंत्री बनाया हो, उसके लिए वो 94 करोड़ का हज हाउस भी नसीब नहीं। और इंतहा तो ये कि उसके बाद अपने चंद गुर्गे भेज दिए और वहां विरोध करवा दिया, और विरोध करवा के फिर वही खेल रचा गया कि साहब अब हिंदू मुस्लिम होगा। चंद गुंडे पहुंच के कहते हैं कि सर ये हम हज हाउस नहीं बनने देंगे, क्योंकि यहाँ हज हाउस बनेगा तो यहाँ कश्मीर जैसे हालात पैदा हो जाएंगे। बताइए, पूरे हिंदुस्तान के हर रियासत के जो उनका कैपिटल है वहां पे हज हाउस मौजूद है, क्या वहां कश्मीर जैसे हालात है? क्या कभी किसी ने रिपोर्ट की है वहां कोई ऐसी घटना जो यहाँ पे हो सकती है? लेकिन ये दोनों पार्टियां खामोश रहती हैं, कांग्रेस भी खामोश रहती है और आम आदमी पार्टी भी खामोश रहती है। तो ये दो बातों से मैं आपको ये समझाना चाहता हूं, नुमाइंदगी में और क़यादत में यही फर्क है। अब वक्त आ गया है, जमीन तैयार है, कौम समझ चुकी है। न सिर्फ ये कि आम आदमी जो खवास है उसके भी समझ में आ गया है, क्योंकि इन लोगों ने ऐसे बुरे हालात कर दिए कि आज कोई भी पार्टी आपका नाम लब पर भी लाना नहीं चाहती। अखिलेश यादव जैसा मुख्यमंत्री जिसका 80% सपोर्ट ही मुस्लिम है, वो भी अपने सांसद तक के सपोर्ट में नहीं आता। उसके सांसद पे बिना वजह एनएसए लगा दिया जाता है, लेकिन उसके सपोर्ट में नहीं आता। और एक उनका लोकसभा का एमपी और एक राज्यसभा के एमपी से कैसे मिलता है, वो फोटो आपने देखा होगा, कैसे आका और महकूम क्या क्या रिश्ता वो शो कर रहे हैं और ये जानबूझ के मैसेजिंग कर रहे हैं। तो मेरे दोस्तों, ये पैगाम दीवार पर लिखा हुआ है, ये बेहतरीन वक्त है, यही वो वक्त है, चोट मार दीजिए। इस वक्त फजा हमवार है, लोग भी तैयार हैं, मेरे जैसा खादिम भी आपके कदमों में है। मेरे किताब के इजरे में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब भी मौजूद थे, उन्होंने भी आपके दानिशवराने दिल्ली से बाकायदा गुफ्तगू की थी, ओपन हाउस था और ऐलान कर दिया था उन्होंने कि जो चाहो, जैसा चाहो और जब चाहो सवाल पूछो। 1 घंटे तक लोग सवाल पूछते रहे, उसमें वो कद्दावर शख्सियात थी, ऐसी ऐसी मायना शख्सियात थी जिन्होंने 40-40 साल से उनकी मुखालफत की थी, और उसके दूसरे दिन ही उनके मार्फत में उन्होंने आर्टिकल लिखे। जिस तरह से बिहार में अख्तरुल ईमान साहब ने तहरीक रकम की, मैं समझता हूं वही बिहार के लोग, वही उत्तर प्रदेश के लोग, वही और दूसरे सूबों के लोग मिलकर इंशाअल्लाह दिल्ली की तारीख खत्म करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि मेरी जो कमजोरियों को आप नजरअंदाज करेंगे और मेरी जो भी कोशिशें होंगी उनको आप सराहेंगे। और मैं अपने
लीडर अख्तरुल ईमान साहब से भी दरखास्त करता हूं, मैं अपना लीडर मान रहा हूं, चले जाइए उत्तर प्रदेश में, हमारे एमएलए, हमारे एमपी, हमारे कौम के लोग हम पे जुल्म ढाते हैं और हम जुबान खोल नहीं सकते। अल्हम्दुलिल्लाह एक ऐसा मर्द मुजाहिद आ गया है और वो हैदराबाद से चला है, उसने पहला पड़ाव महाराष्ट्र में डाला और दूसरा पड़ाव बिहार में डाला और तीसरा पड़ाव की पूरी तैयारी उत्तर प्रदेश में और चौथा दिल्ली में। और जैसे ही ये 6 राज्य कंप्लीट होंगे आप नेशनल पार्टी बन जाओगे, आप सियासी कुव्वत पा जाओगे, आप वो वकार पा जाओगे जिसको आपकी आंखें तरस रही है, जिसको आपके असलाफ ने इस्तेमाल किया है, जिसको आपने फील किया है। और अगर अब भी नहीं समझे तो तैयार हो जाओ, तुम्हारी नस्लें, तुम्हारी जो औलादे हैं वो इतना बुरा वक्त देखेंगी जिसका तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। रोहिंग्या तो सिर्फ एक मिसाल है, रोहिंग्या वाला जो मामला है वो तो एक सिर्फ मिसाल है, इससे भी बदतर हालात हो सकते हैं अगर आपने आज बंद नहीं लगाया। इतनी तेजी से कौम नीचे जा रही है, इतने मसाइल बढ़ते चले जा रहे हैं, लेकिन हमारे पास कोई इंतजाम नहीं है। हमें सारी हमारी मजहबी लीडरशिप, हमारी सोशल लीडरशिप, हमारी और दूसरी जो सियासी लीडरशिप है, सबने हमें फेल किया। मैं यकीन के साथ बहुत जिम्मेदारी से ये बात कह रहा हूँ, हमें न वो हमें ईमान का जज्बा है, न वो हमें समाज में हमारे एक्टिविज्म है, और न सियासत में हमारी सूझबूझ है, न शऊर है। तो अब ये चंद लोग निकले हैं और आप लोगों के सामने ये आए हैं, ये लेकर आए हैं, ये बैरिस्टर साहब का पैगाम लेकर आए हैं कि आप एक हिंदुस्तान की सियासत में जमहूरियत की हिफाजत करने के लिए आओ और अपने आईन की रस्सी को मजबूत से पकड़ लो। और दूसरा जो आपके बराबरी जो मजलूम तबका है वो दलित, उसको भी अपना भाई बना। जब कुरान फरमाता है कि आप में और उनमें कोई फर्क नहीं है, तो आप कौन होते हो उनमें फर्क करने वाले? इसलिए उनको भी अपना भाई बना लो। और आज अब तक मैं कम से कम 25 से 30 संगठनों से बात कर चुका हूं दलितों से। आज भी बेहतरीन जो उनका पूरे 151 संगठन है, उनका ऑल इंडिया का एक वाल्मीकि अध्यक्ष बना जो डॉक्टर है आपके पटना से, और एक उनका जनरल सेक्रेटरी बना जो तेलंगाना से है, और एक उनका जो सरबराह है वो दिल्ली से है। वो तीनों चारों लोग आज मुझसे मिलने आए और कसम खुदा की उनकी आंखों में जो उम्मीद थी और जो उनकी रोशनी थी, और उन्होंने मुझसे गुफ्तगू की है 2 घंटे में, हमारे राजीव रियाज साहब मौजूद थे वहां पे। और मैं आपको यकीन से कह रहा हूं कि एक इंकलाब बर्पा होने वाला है। खासतौर से वाल्मीकि जो कम्युनिटी है वो बिल्कुल तैयार है असदुद्दीन ओवैसी साहब की लीडरशिप में काम करने के लिए, आपकी मजलिस के झंडे के नीचे काम करने के लिए, इस प्लेटफॉर्म को अपनाने के लिए। तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों, आप एक हो जाओ,